टमाटर बाहर रख लो, ये पहले वाले नहीं बने। Good morning, ma'am. Good morning. Am I audible now? Yes, ma'am. Okay. Chalo, let's start with the topic. As and when people come, I'll just get them along. Is the screen is on your phone or something? Whichever way you're operating Zoom, is it okay? Can you see this? The slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Chalo, let's start then. We are starting with the topic Order 23, withdrawal and adjustment of suits now. सबसे पहले तो we need to understand what is this concept and what is the basic reason, basic concept behind this. The withdrawal and adjustment of suits is basically which after institution of suit, if the plaintiff thinks that he doesn't want to continue with the suit anymore, then he has an option to withdraw the suit or adjust the suit accordingly with the provided rules in CPC. Yes, Saurabh? मैम कल एक आपने जो टेस्ट दिया था उसमें एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी मैम. Question is it? मैम वो थर्ड पार्टी हु इज क्लेमिंग इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच इज सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री मे अप्लाई अंडर द रूल. मैम इसमें 90 क्यों नहीं था आंसर? 90 आंसर लिखा हुआ उसमें? नहीं मैम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें मैम 89 और 90 में दोनों में कर सकता है, तो मैम इसमें 90 क्यों नहीं था? दोनों में नहीं कर सकता है सौरभ, ध्यान से नहीं देखी बेटा तुमने उसकी लैंग्वेज. 90 की लैंग्वेज खोलो, मैं तुम्हें बता देती हूँ अभी. मैम 89 में तो वो डिपॉजिट कर देगा. Don't do one thing सौरभ, call me personally for this, ताकि बाकी लोगों का यहाँ पे टाइम नहीं खराब होएगा. हम लोग इसको पर्सनली डिस्कस कर लेंगे, तुम मुझे कॉल कर लेना इसके बारे में. Is it okay? ओके मैम. ओके मैम. किसी और को कल के किसी क्वेश्चन के बारे में डाउट है तो वो प्लीज मुझे कॉल कर लेना. हाँ लागवी. Ma'am, in the last questions there was a doubt. ठीक है, just do one thing, call me after the class, when your classes are over, call me after it, okay? All right, ma'am. We'll discuss. So let's start with today's topic, withdrawal and adjustment. Withdrawal और adjustment जो है ये basically बात कर रहा है जब institution of suit के बाद plaintiff is thinking that he doesn't want to continue anymore with the suit. So on whichever stage he wants, he can apply to the court, or maybe without the permission of the court, he can withdraw from the suit. So this is the concept which has been introduced in the CPC for the for saving time of the court and for saving plaintiff for unnecessary hassle if he doesn't want to continue anymore. So there are two basic things which they are talking about here. I have included in the same manner I have included in death insolvency. First we'll be dealing with the basic concept behind that rule, and after that we'll be watching the language for that rule. Okay, so there is a summary I have prepared for rule 1 of our order 23, which talks about that the rule 1 is talking about basically two kinds of concept. First one is when a plaintiff is withdrawing from the suit without permission of the court. Here is sub rule 1. And the second thing which we are talking about here is withdrawal from suit with permission from the court. Here it is the permission from the court. Okay. And in sub rule 2, they're talking about the procedure to withdraw where the plaintiff is the minor or of unsound mind. And after that, in sub rule 4, they're talking about the consequences of withdrawal without permission of the court. So let's start with the summary, and after that we'll be going through the language of the rule basically.
So here is the summary of rule 1, that this rule is not creating any right, it merely affirms the right that the person who doesn't want to continue anymore can withdraw the suit anytime he wants. There will not be any kind of compulsion for the person if he doesn't want to continue for the suit anymore. So he has an option. Either he can withdraw on his own without the permission of the court. Second thing, if he wants to have a privilege to institute a fresh suit, even if when needed, then he can be, and then he should withdraw from the suit with permission of court, which subrule 3 is talking about. So subrule 1 or 3, both are talking about withdrawal, but the basic difference is subrule 1 is talking about without the permission of the court, and subrule 3 is talking about with permission of the court. With और without permission में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप with permission, कोर्ट के permission के साथ अगर उसके बाद उसको withdraw करते हो, तो you have the privilege, कोर्ट उसी order में आपको ये भी privilege देगा कि अगर आपको बाद में कभी वापस से suit institute करना है same subject matter पे against the same party, then you can institute a suit again. अगर आप बिना परमिशन के विड्रॉ करते हो तो आपको वापस से सूट इंस्टीट्यूट करने का प्रिविलेज नहीं मिलेगा. ये बेसिक फर्क है इन दोनों चीजों में. I have included this point in the next slide. Here it is. If the party desires to withdraw from the suit with liberty to institute a fresh one, then he must apply to the court under subrule 3 to permit him so to withdraw. And if he does not desire to have that liberty, he may withdraw the suit on his own. He doesn't need the permission of the court. Let's move on to the next slide. What happens if he withdraws without the permission? Subrule 4 is talking about the consequence of withdrawal without permission. The party shall be liable for the cost. Excuse ma'am. Yes. मैम एक बार मैम वापस से शुरू से रिपीट कर दीजिए क्योंकि मैम कई जनों को पता ही नहीं था कि 10:15 बजे क्लास चालू हो रही है. सबको पता था 10:30 बजे का क्लास है. Okay, beta. Is it okay? I'll repeat it. Pranav, right? Yes ma'am. Pranav, we are talking about withdrawal and adjustment of suits. And everyone who has joined just now, we are talking about withdrawal. Withdrawal का मतलब यहाँ पे ये है कि कभी भी जब आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है उसके बाद अगर किसी भी पॉइंट पे you feel that as a plaintiff you feel that you don't want to continue anymore with the suit, you can withdraw the suit with permission of the court or without permission of the court. सिर्फ ये फर्क है इन दोनों में कि if you withdraw the suit with permission of the court, court may grant you privilege that you can file a fresh suit regarding the same subject matter and same defendant if you feel in future. And if you withdraw without permission of the court, you will not have that privilege to institute a fresh suit on the same subject matter against the same defendant. So here I have prepared a summary for rule 1, which says by sub rules that what do they have to say about the withdrawal. Subrule 1 is talking about withdrawal of suit by the plaintiff on its own motion. Then plaintiff feels that he doesn't want to continue, so he withdraws the suit without permission of the court. Subrule 2 is talking about the procedure to withdraw where the plaintiff is minor. In that case, what happens is, because minor does not file a suit on his own, so what happens is his next friend who is contesting the suit on his behalf must file an affidavit. We'll discuss this rule, this sub rule in detail. पहले मैं आपको summary बता देती हूँ थोड़ा सा ताकि बाद में language समझना आसान हो जाएगा आपके लिए. Sub rule 2 talks about the procedure where to withdraw where the plaintiff is minor. तो उस केस में next friend का plus pleader का इन दोनों का वहाँ पे affidavit लगता है, वहाँ पे pleader का certificate लगता है that I feel that this withdrawal is in interest of the minor. So this happens. And sub rule 3 is talking about the withdrawal from suit with permission of the court. इस केस में हम कोर्ट को अप्लाई करते हैं that we want to withdraw on certain grounds. वो grounds के बारे में सब रूल 3 जो है वो बात कर रहा है. ना फिर टेस्ट की रिपोर्ट देंगे ना तब डॉक्टर से कहेंगे डॉक्टर ये दवाई असर नहीं कर रही पहले जैसे. Yes, sorry for the inconvenience. Archit, please mute your mic. I have muted you. Yes.
here I have tried to just summarize the difference between withdrawal from suit with permission of court and withdraw of suit without permission of court. If you withdraw without permission of the court, you will not be able to institute a fresh suit. And if you withdraw with permission of the court, you may file a fresh suit after this withdrawal. Subrule 4 here is talking about the consequence of withdrawal without permission. अगर आप without permission अगर आप वहाँ पे withdraw कर लेते हैं, तो there will be two consequences. First is that you will be liable for the cost as the court may award, and the second one is you shall be precluded from instituting any fresh suit, जो थोड़ी देर पहले हमने discuss किया है यहाँ पे. Let's move on to next slide. यहाँ पे एक slide मैंने include की है इस case की, जो कि बात कर रहा है 2006 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ऑल्दो सीपीसी में ये चीज क्लियरली लिखी हुई है कि अगर कोई बिना कोर्ट की परमिशन के विड्रॉ करता है सूट, उस केस में वो नया सूट फाइल नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि उस इंसान का राइट्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं और कोर्ट को लगता है टू द जुडिशियस माइंड ही इज सेटिस्फाइड द कोर्ट दैट the person is facing some hardship, court may allow that person to file a fresh suit under section 151, which is of inherent powers. So it is completely on the discretion of the court here. If it feels that he may be allowed to file a fresh suit, even if he did withdraw the suit without the permission of the court, then court may allow him under inherent powers का section जो हमने देखा था 151 में. But these are very exceptional circumstances. These circumstances do not arise very often in which court use 151. So here is subrule 5 की summary. When there are more than one plaintiff, उस केस में आपको सभी plaintiffs की consent लेनी है. उससे पहले आप वहां पे उस सूट को विड्रॉ नहीं कर पाओगे, उस क्लेम को अबैंडन आप नहीं कर पाओगे वहां पे. तो ये मैंने एक समरी आपको सब रूल 1 से लेके 5 तक की बता दी है यहाँ पे. सब रूल 1, 2, 3 की इस स्लाइड में है, देन सब रूल 4 की समरी इस स्लाइड में है, एंड देन सब रूल 5 की समरी इस स्लाइड में है. इज इट ओके? समरी आपको समझ में आ गई या किसी को भी कंसेप्ट भी समझ में नहीं आया है? तो अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो विल कंटिन्यू विद द लैंग्वेज ऑफ इट नाउ. मैम यस मैम फिफ्थ तो बताओ. तो एक बार सब सेक्शन 2 सब रूल 2 बता दीजिए एक बार. सब रूल 2 बात कर रहा है बेटा अबाउट द प्रोसीजर टू विड्रॉ व्हेन द पर्सन हु इज अ प्लेंटिफ हियर इज अ माइनर. तो जो माइनर होता है वो अकेला सूट फाइल नहीं करता है, उसका नेक्स्ट फ्रेंड होता है हमेशा वहां पे सूट में. तो उस हिसाब से अगर नेक्स्ट फ्रेंड जो वहां पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट पर्सन मस्ट सबमिट एन एफिडेविट इन द कोर्ट दैट इन माय ओपिनियन दिस विड्रॉल ऑफ सूट इज इन इंटरेस्ट ऑफ द माइनर. then and then only court will accept your application to withdraw the suit. और withdrawal of suit जो है minor के केस में a person will not be allowed without permission of the court if the plaintiff is minor. Yes? Ma'am, the next friend should be a major or minor? Next friend should be major or minor? Yes, ma'am. Next friend is always major because it is an implied rule. It's not given in order 32 which we deal about when a person is minor or unsound mind. But when a person is minor and he is the one who is plaintiff here, and if we are appointing someone as a next friend, that person must be major. Okay. Yeah. अभी तक का concept समझ में आ गया आपको? अभी हमने language शुरू नहीं किया है. Is it clear until now? Then we'll continue with the language. Okay. मैम एक बार सब रूल 5 बता दीजिए. Sub rule 5 here is talking about if there are more than one plaintiffs. तो उस केस में आपको अगर सूट को विड्रॉ करना है तो आपको सारे प्लेंटिफ्स जो हैं उनका वहां पे कंसेंट की जरूरत है अगर आपको वो सूट वहां पे विड्रॉ करना है. बस हाँ इतना जरूर हो सकता है कि अगर वन प्लेंटिफ ही वांट्स टू लेट गो ऑफ हिज ओन क्लेम, देन ही मे विड्रॉ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्लेम ऑन हिज ओन. अगर आप उसको पूरा सूट विड्रॉ करना चाहते हो, अगर क्लास एक्शन सूट है, फॉर एग्जांपल क्लास एक्शन है, रिप्रेजेंटेटिव सूट है, ऐसा कुछ है जहाँ पे एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, वहाँ पे सारे प्लेंटिफ्स की कंसेंट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू विड्रॉ द सूट. इज इट ओके? ओके मैम. Shall we move on to the language now? Chalo, let's continue with the language now. See the language of rule 1. This is the sub rule 1. It's saying at any time after the institution of the suit, the plaintiff may, as against all or any of the defendants, abandon his suit or abandon a part of his claim. At any time after institution of suit, के suit institute हो चुका है उसके बाद की बात है, कभी भी plaintiff को लगता है
that he wants to abandon his claim against all of the defendants, or maybe even if there are more than one defendant, if I want to withdraw my claim for one of the defendant, I can also do that. कि अगर क्लास एक्शन सूट है जिसमें बहुत सारे प्लेंटिफ हैं, जिसमें बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं, अगर ऐसा कुछ है, तो अगर वो लोग किसी एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही अपना क्लेम जो है वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. अगर आप पूरा सूट विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. Proviso says that where the plaintiff is a minor or other person to whom provision of rules 1 to 14 order 32 extend, neither the suit nor any part of claim shall be abandoned without the leave of the court. ये वही माइनर वाले सूट की बात कर रहा है कि अगर माइनर है कोई, उस केस में without the leave of the court you cannot abandon any part of the claim, or maybe the whole suit you cannot abandon without the permission of the court. Let's move on to next sub rule. It says what happens in case of minor or unsound mind plaintiff. Sub rule 2 says an application for leave under proviso to sub rule 1, जो कि minor की बात कर रहा था, अभी हमें ऊपर देखा ये proviso के बारे में. It talks about minor person. So here an application for leave under proviso to sub rule 1 shall be accompanied by what? Here it is affidavit of the next friend and a certificate of a pleader. If the pleader is there to represent the minor person, a certificate of a pleader is also required in that case. So अगर आप minor है आपका client अगर and you want to withdraw the suit on his behalf, you need to know two things, that there must be affidavit of the next friend who is there to represent the minor, and if you are the pleader, you are required to submit a certificate that in your opinion this withdrawal is in the benefit of the minor. And after that court will examine the situation and accordingly court will allow. It is completely on the discretion of the judge whether to allow you to withdraw the suit which is filed on behalf of the minor, or whether to not allow you to withdraw the suit which was filed on behalf of the minor. Is it okay till sub rule 2? Shall we move on to the next sub rule? Yes, ma'am. Fine. Ma'am, Yes. ma'am, if the court doesn't allow to withdraw the suit Yes. in sub rule 2, then can we withdraw without permission? Yes, you can withdraw. No. In case of minor, you cannot withdraw. No. It is only about minor. Yes. This sub rule 2 na. See, there is a proviso to sub rule 1 which clearly says कि अगर minor है, you shall not abandon the suit without the leave of the court. Okay, ma'am. ठीक है? तो ये privilege जो है ना हमारे पास, जो without the permission of the court withdraw करने की, ये उस केस में है जहाँ पे कोई minor नहीं involved है, कोई भी ऐसा involved नहीं है जो यहाँ पे representative हो रखा है उस minor का. अगर वो आपने फाइल किया है as a major person, as a complete party who is presenting yourself in the court, so you may withdraw without the permission of the court. But if it is a minor, you are the next friend, you cannot withdraw without the permission of the court. Okay? Okay, ma'am. Let's move on to the next sub rule, which is sub rule 3. Sub rule 3 is talking about withdrawal by permission of the court. What happens here is that the court is satisfied that the suit must fail by reason of some formal defect, or that there are sufficient grounds for allowing the plaintiff to institute a fresh suit for subject matter of the suit. अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हमें दो ग्राउंड मेजरली यहाँ पे याद रखने हैं, फॉर्मल डिफेक्ट एंड देयर आर if there are sufficient grounds. अब ये formal defect तो फिर भी we can explain like this. There are certain case law which I went through, and in them there was some kind of examples were there which was explaining the concept of formal defect. I have included those examples in this particular slide number 11, which have certain grounds for formal defect: misjoinder of parties or cause of action, erroneous valuation of the suit, or maybe there was a want of statutory notice under section 80, failure to disclose a cause of action, non-payment of court fee or stamp fee, lack of jurisdiction. There might be n number of reasons, but those reasons must be related to formal defect only. If there is meritorious defect in the case, they cannot withdraw the suit in that particular case. तो सूट जहां पे हम कोर्ट की परमिशन से विड्रॉ करेंगे वहां पे दो ग्राउंड्स होने जरूरी हैं जो कोर्ट यहाँ पे
कोड यहाँ पे बात कर रहा है कोड के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी अ फॉर्मल डिफेक्ट ओनली, कि कोई जुरिसडिक्शन से रिलेटेड डिफेक्ट है या फिर पार्टीज के जॉइंडर से रिलेटेड डिफेक्ट है, या कॉज ऑफ एक्शन आपने नहीं लिखा इस वजह से कोई डिफेक्ट है, या फिर जुरिसडिक्शन का कोई डिफेक्ट है, ऐसा कुछ भी अगर है जिसकी वजह से कोर्ट को लगता है कि सूट फेल हो सकता है, तो कोर्ट आपको परमिशन दे देगा that you may withdraw this suit and file a fresh one. And in B point of this sub rule, if there are sufficient grounds for allowing the plaintiff to institute a fresh suit for the subject matter, it may on such term as it thinks fit grant the plaintiff the permission to withdraw and institute a fresh suit after it. Is it clear? Sub rule 3. सब रूल 3 समझ में आ गया या फिर आगे चलूं मैं, हो गया ये? Yes, ma'am. Fine, let's move on to in next 2 slides I've included some examples of formal defect plus sufficient grounds के 2 example मैंने यहाँ पे add कर दिए हैं. Maybe the suit was premature or omission of the file to file the power of attorney, कुछ भी reason हो सकता है, वो कोर्ट को sufficient लगना चाहिए. उसके ये सिर्फ 2 guidelines दिए हैं उन्होंने. It is completely on the discretion of the court whether to allow you to withdraw the suit or not. It is on the judge. So here I've included a slide in which I've written that if you guys remember, rejection और return के जो grounds हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं. आप लोगों को ध्यान है जो ऑर्डर 7 में अपने रूल 11 और 10 और ये जो है इनके साथ में जब हम लोग रिटर्न और रिजेक्शन ऑफ पेंट की बात करते हैं उस टाइम पे भी ग्राउंड सेम ही है. तो इन दोनों के ग्राउंड सेम होने का क्या रीजन है? अगर हम रिटर्न और रिजेक्शन का पहले ही दे चुके थे पूरा डिटेल, तो हमें विड्रॉल के लिए कोड में अलग से प्रोविजन की जरूरत क्यों पड़ी? मैम विड्रॉल में प्लेंटिफ का खुद का मोशन से भी विड्रॉ हो सकता है. ओके, एंड व्हाट एल्स? Ma'am, in rejection of plaint, the plaint was rejected by the court. Here, the plaintiff himself wants to withdraw. हाँ. और मैम यहाँ पे फॉर्मल डिफेक्ट है. फॉर्मल the डिफेक्ट motive है. behind- यस गायत्री. the motive behind both reasons are different. In withdrawal, the plaintiff himself, for whatever reason, feels like he doesn't want to pursue the suit anymore, and in rejection, the court itself rejects the plaint. ओके. अच्छा, एक चीज और है, अगर आप लोग सीपीसी है अभी अगर आप लोगों के पास, तो आप निकाल के देख भी सकते हैं उस चीज को कि जब हम रिटर्न ऑफ प्लेंट या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप खोलिए एक बार ऑर्डर 7 और रूल 11 खोल लीजिए एक बार अगर आपके पास सीपीसी है तो. उसमें ये लिखा हुआ है कि व्हेन द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, प्लेंट जिस टाइम पे अभी सूट शुरू नहीं हुआ है, अभी वो प्लेंट के स्टेज पर ही है, तभी कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकता है. और जो रिटर्न का केस है वहां पे भी जुरिसडिक्शन का पॉइंट आता है, जो यहाँ पे फॉर्मल डिफेक्ट में मैंने लास्ट पॉइंट में इंक्लूड किया है, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन. इस केस में भी रिटर्न की जा सकती थी प्लेन, बट कोर्ट ने रिटर्न नहीं की. यहाँ पे आपको विड्रॉल के लिए उन्होंने यहाँ पे परमिशन दी है, जबकि दोनों रिजेक्शन और रिटर्न दोनों के केस में यू कुड हैव फाइल्ड अ फ्रेश प्लेन, फ्रेश सूट. इसमें यहाँ पे एक पॉइंट है छोटा सा जो आपको बस एक बार ध्यान देने की जरूरत है कि क्या चीज है. एक्चुअल में सर मुल्ला जो है उन्होंने अपनी बुक में इसको एक्सप्लेन करते हुए रीजन ये बताया है कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो चार्टर्ड हाई कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं होते. जो रिटर्न और रिजेक्शन के जो पॉइंट्स हैं वो चार्टर्ड हाई कोर्ट पे अप्लाई नहीं होते. इस वजह से विड्रॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो चार्टर्ड हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के लिए काम में बहुत लिया जाता है. चार्टर्ड हाई कोर्ट जो हमारे हैं ये ऑर्डर 49 में है. चार्टर्ड हाई कोर्ट कौन से हैं, किसी को आइडिया है? क्या होता है चार्टर्ड हाई कोर्ट? Ma'am, can you repeat that? There are some provisions of CPC 1908 which are not applicable on the chartered high courts. Sir Mullah have said in this commentary about CPC that the withdrawal has same conditions which we have for return of plaint or maybe rejection of plaint, but the particular reasons, formal defects and jurisdiction and examples of all those formal defects are applicable to majorly chartered high courts because चार्टर्ड हाई कोर्ट्स पे बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं होते हैं.
तो उसमें से रिटर्न और रिजेक्शन के जो पॉइंट्स है ना वो चार्टर्ड हाईकोर्ट्स पे अप्लाई नहीं होते। इस वजह से उन्होंने विड्रॉल का जो अलग से यहाँ पे प्रोविजन दिए हुए हैं ये चार्टर्ड हाईकोर्ट्स के बहुत काम आते हैं। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे? प्लीज रीड दिस स्लाइड आउट विच इज इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। यस अभिषेक। मैम जो प्रेसिडेंसी टाउन में जो हाई कोर्ट्स हुआ करती थी, आई गेस दोज आर चार्टर्ड हाई कोर्ट्स। हाँ एग्जैक्टली, प्रेसिडेंसी टाउन्स में क्या जो चार्टर्ड हाई कोर्ट्स के अंदर टेरिटरी में जो होते हैं ना वो सारे प्रेसिडेंसी के होते हैं, विच इज ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। ये तीनों हाई कोर्ट्स जो हैं ये चार्टर्ड हाई कोर्ट्स हैं। इन पे बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो अप्लाई नहीं होते हैं। और ये है ऑर्डर 49 में लिखा हुआ है कि कौन कौन से रूल्स अप्लाई नहीं होते। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ऑर्डर 49 का जो रूल 3 है उसमें लिखे हुए हैं कि बहुत सारी चीजें अप्लाई नहीं होंगी। तो उस केस में रिजेक्ट और रिटर्न का जो केस है वो चार्टर्ड हाई कोर्ट्स के अंदर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उनके पास वो ऑर्डर, वो रूल है ही नहीं। इस केस में वहां पे वो लोग विड्रॉल यूज कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है इस चीज का कि रिजेक्शन, रिटर्न और विड्रॉल के ग्राउंड समहाउ सेम से क्यों है, जबकि तीनों का कंसीक्वेंस एक ही है। सिर्फ इसके कि आप विड्रॉल अगर विद कोर्ट की परमिशन करते हो तो आप नया सूट फाइल कर सकते हो, सिर्फ इतना सा फर्क है। अगर आप बिना कोर्ट की परमिशन के विड्रॉ करोगे तो आप नया सूट फाइल नहीं कर सकते जब तक कोर्ट उसको 151 के अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अलाउ नहीं करेगा। ये देखिए एक बार, सब रूल 1 में हम लोगों ने बात की कि आप बिना कोर्ट की परमिशन के कब विड्रॉ कर सकते हैं। प्रोवाइजो में ये चीज है कि अगर माइनर है तो आप बिना कोर्ट की परमिशन के विड्रॉ नहीं करेंगे। सेकंड सब रूल में हमने पढ़ा कि कोर्ट अगर माइनर है तो उस केस में एक तो एफिडेविट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड लगेगा प्लस सर्टिफिकेट ऑफ द प्लीडर इज आल्सो नेसेसरी टू बी फाइल्ड इन दैट केस दैट दिस पर्टिकुलर विड्रॉल इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। After that we went through sub rule 3 which talks about withdrawal by the permission of the court. इसमें दो ग्राउंड्स हैं, एक तो फॉर्मल डिफेक्ट हो सकता है या फिर और भी कोई सफिशिएंट ग्राउंड व्हिच इज satisfactory to the particular court. That ground, on that particular ground the court may allow you to withdraw the suit. इसमें मैंने फॉर्मल डिफेक्ट के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और इसमें सफिशिएंट ग्राउंड्स के लिए एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे इतनी सी चीज बताई है इस वाली स्लाइड में कि कुछ रीजंस ऐसे हैं, कुछ ऐसे रिटर्न ऑफ पेमेंट और बाकी सब चीजें हैं तो अप्लाई नहीं होते हमारे ऊपर। Am I audible now? Yes? Yes, ma'am. Yes, Krati, tell me. Am I audible now? Yes, ma'am. Fine. तो यहाँ तक हो गया, सब रूल 3 तक हो गया जहाँ पे कोर्ट से हमें परमिशन मिल गई है। नाउ वी कम टू सब रूल 4 विच टॉक्स अबाउट कि अगर प्लेंटिफ बिना कोर्ट की परमिशन के विड्रॉ कर लेता है उस केस में क्या होगा। तो वेयर द प्लेंटिफ अबैंडन्स एनी सूट और पार्ट ऑफ क्लेम अंडर सब रूल 1 या withdraw from the suit or part of the claim without the permission, then he will be liable for the cost as जैसा हमने समरी में पढ़ा था, plus he will be precluded from instituting any fresh suit. ये उसके consequences हैं अगर आप बिना permission के withdraw करते हो तो। Now we move on to the next sub rule which is sub rule 5. In case of several plaintiffs, nothing in this rule shall be deemed to authorize the court to permit one of several plaintiffs to abandon the suit to or to withdraw under sub rule 3 without the consent of other plaintiffs. कि आप जब तक सारे plaintiffs की consent के लोगे कोर्ट भी अलाउ नहीं करेगा आपको विड्रॉ करने के लिए। अगर आपको क्लास एक्शन विड्रॉ करना है आपको सभी पार्टीज की कंसेंट लेनी जरूरी है, जितनी भी पार्टीज हैं। सब रूल 5 कंप्लीट, इज इट ओके? सब रूल 5 तक ये रूल 1 हमारा खत्म हो चुका है, ये आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो हम लोग फिर डाउट्स इसके पहले डिस्कस करें फिर हम लोग आगे चलेंगे। Ma'am, I have a question about sub rule 5. Yes. Ma'am, what if one of the plaintiffs wants to drop his claim on the suit? Just one of the plaintiff? Only his part of the claim? Yes. Yes, he may withdraw, but only his part of the claim. With or without permission of the other plaintiffs? Yes. He can withdraw without permission or with permission, but only his part of the claim. If other people do not agree, he may withdraw.
All right. So then, ma'am, what is this sub-rule 5 talking about? Sub-rule 5 is talking about the complete abandonment of the suit. अगर 3 लोग हैं यहाँ पे, तुम हो, मैं हूँ और लागवी हैं, हम 3 लोगों ने मिलके we filed a suit, and after that Lagvi wants to withdraw from the suit only regarding her part of the claim. She may withdraw, but if she wants that even if you and me, we both also should withdraw from the suit, she cannot make that particular thing happen. All right, okay. Right? If we want to withdraw from the suit completely, तब लागवी, गायत्री, अलीशा तीनों की जो कंसेंट है वो जरूरी है. अगर लागवी अपना पार्ट वहां पे क्लेम जो उसका है वो अगर विड्रॉ करना चाहती है वो कर सकती है, बट बिना कंसेंट के वो बाकी प्लेंटिफ्स का कुछ भी नहीं विड्रॉ करवा सकती. तो सब रूल 5 जो है ये कंप्लीट अबैंडनमेंट की बात कर रहा है कि अगर पार्ट ऑफ द क्लेम सारे प्लेंटिफ की तरफ से भी अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपको सब कंसेंट चाहिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ अपना पार्ट जो है वो विड्रॉ करना है, उस केस में आपको किसी की कंसेंट की जरूरत नहीं है. Okay, ma'am. Who is this Girish Kumar in our class? Does anyone know by this name anyone? Girish Kumar, कोई जानता है इसको? No, ma'am. Fine, chalo. Let's continue with the next few points of this particular rule. Whether appeal lies against such order, an order granting or refusing permission to withdraw the suit with permission to file a fresh suit, the decree is not appealable because this is not a decree and nor appealable order. तो ये यहाँ पे अपील लाई नहीं करेगी इस पर्टिकुलर ऑर्डर से. अगर आपको कोर्ट या तो रिफ्यूज कर देता है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर सूट को. अगर मान लो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोगों ने गायत्री, लागवी और अलीशा 3 लोगों ने यहाँ पे सूट फाइल किया हुआ था और वहां पे हम तीनों ने वी फाइल्ड एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट दैट प्लीज अलाउ अस टू विड्रॉ दिस पर्टिकुलर सूट. In that case, if court refuses our claim, our application कि भाई आप नहीं withdraw कर सकते, तो उसके लिए अपील लाई नहीं करेगी. तो फिर क्या करें, आप अपील लाई नहीं करेगी तो then what remedy does the aggrieved party has? An order granting or refusing permission to withdraw the suit with permission is a case decided under 115 of CPC, जो कि रिवीजन की बात कर रहा है, और वो ऑर्डर जो है उसको आप रिवाइज करवा सकते हो. रिवीजन का मतलब याद है आपको? रिवीजन क्या था? रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, 3 कंसेप्ट हमने पढ़े थे, सेक्शन 113, 114 एंड 115. मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर आपने विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी और कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज कर दी, मान लीजिए, अब आप एग्रीड पार्टी हैं, अब वो डिक्री तो है नहीं जो आपने एप्लीकेशन फाइल की थी उसमें जो ऑर्डर आया है, और अगर अपीलेबल नहीं है वो चीज तो फिर आप क्या करेंगे उस चीज का? आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं उस चीज के अगेंस्ट. रिवीजन कहाँ फाइल होता है? हाई कोर्ट. सिर्फ हाई कोर्ट में फाइल होता है रिवीजन? सीपीसी में मैम हाई कोर्ट में ही होता है और सीआरपीसी में कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई. सीआरपीसी में नहीं जा रहे, बस सीपीसी में ही रहो. हाई कोर्ट मैम. ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप अपील नहीं कर सकते, उस केस में आप क्या करेंगे? आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं. रिवीजन हाई कोर्ट में फाइल हो रहा है, कोर्ट अपने आप भी रिकॉर्ड मंगा सकता है रिवीजन में, आप खुद भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं. तो उस केस में आप क्या करेंगे? अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गया है, उस केस में आप रिवाइज करवा सकते हैं उस ऑर्डर को. ठीक है, let's move on to the next rule, rule 1 capital A, which talks about when the transposition of defendants as plaintiffs may be permitted. अब यहाँ पे ये बात कर रहा है यहाँ पे रूल 1 कैपिटल ए में कि अगर मान लीजिए कि प्लेंटिफ था, जब उसने विड्रॉ कर लिया अपना सूट, यहाँ पे जो डिफेंडेंट्स थे वो लोग अब ऐसे हैं कि आपस में उन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा डाउट है, ऐसा कुछ क्लेम है उनका जो वो यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं, तो डिफेंडेंट्स को प्लेंटिफ भी यहाँ पे कोर्ट अगर चाहे तो एक्सचेंज कर सकता है वहां पे. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने, गायत्री ने और लागवी ने एक सूट फाइल की थी और उस सूट को हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया है, और उसके बाद डिफेंडेंट जो है वो अप्लाई करता है कोर्ट को कि ठीक है इन्होंने तो विड्रॉ कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पे प्लेंटिफ बन के इस सूट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ.
तो अगर कोर्ट कंसीडर कर ले उस एप्लीकेशन को तो वो डिफेंडेंट्स को वहां पे प्लेंटिफ बना के भी ट्रांसपोजिशन कर सकता है। रूल 1 कैपिटल ए समझ में आ गया आप लोगों को मैंने क्या कहा अभी? Ma'am, can you repeat once again? Yes. For example, there were 3 people in the plaintiff वाला side, गायत्री, अलीशा एंड लागवी। उस केस में मान लीजिए कि हम तीनों ने केस जो अपना विड्रॉ कर लिया, we withdraw the suit with or without the permission of the court, and the defendant applies to the court कि इन्होंने तो विड्रॉ कर लिया है, but I want to be plaintiff now and I want to sue them with this particular suit. इसी क्लेम में मैं प्लेंटिफ बनके उनके अगेंस्ट में यहाँ पे कंटेस्ट करना चाहता हूँ। तो if court wants to continue, if court thinks that it satisfied its judicious mind, and while considering this application, court may change that particular defendant into plaintiff and will continue with the suit after that. All right, ma'am. And also there is a condition in which, यहाँ तक समझ में आपका जो मैंने आपको कहा, that have due regard to the question whether applicant has a substantial question to be decided against any of the other defendant. अब यहाँ पे मान लो कि डिफेंडेंट एक से ज्यादा थे, जैसे केस था गायत्री अलीशा लागवी वर्सेस अभिषेक तनुज एंड सौरभ। तो उस केस में गायत्री अलीशा लागवी ने वहां पे सूट जो है उसको विड्रॉ कर लिया, और अब तनुज, अभिषेक और सौरभ जो है, इन तीनों में से किसी एक का जो इंटरेस्ट है वो आपस में क्लैश कर रहा है। अगर सौरभ अप्लाई कर दे कोर्ट को कि मुझे आप प्लेंटिफ बना दीजिए इस पर्टिकुलर केस में, तो वो तनुज और अभिषेक के अगेंस्ट में उस सूट को कंटेस्ट करना चाहता है। अगर कोर्ट उसको कंसीडर कर ले तो वो सौरभ को प्लेंटिफ बना के बाकी दोनों को डिफेंडेंट बना के भी सूट को कंटिन्यू कर सकता है। ये 2 कंसेप्ट है यहाँ पे, आपको दोनों समझ में आ गए? Yes, can you repeat the second concept? मैम दूसरा वाला समझाना मैं वापस। कॉन्सेप्ट में डिफेंडेंट भी एक से ज्यादा है नंबर में। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 लोग प्लेंटिफ में है, 3 ही लोग डिफेंडेंट में है। प्लेंटिफ ने जब अपनी सूट विड्रॉ की तो उसके बाद प्लेंटिफ वाली साइड में कोई बचा नहीं। डिफेंडेंट जो 3 है आपस में, उन दोनों का भी यहाँ पे, उन 3 लोगों का भी आपस में कुछ डिस्प्यूट है। तो अगर उसमें से एक डिफेंडेंट भी ये अप्लाई कर दे कोर्ट को कि यहाँ पे मैं कंटेस्ट करना चाहता हूँ सूट को इन दोनों डिफेंडेंट के खिलाफ जो बीच में बचे हैं मेरे साथ तीनों में से 2, तो कोर्ट उसके एप्लीकेशन को अगर एक्सेप्ट कर ले तो उस एक डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना के सूट को कंटिन्यू भी कर सकता है। ये जो लास्ट वाली लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है इस टाइम पे, ये उसी की बात कर रही है। Okay, ma'am. तो यहाँ पे डिफेंडेंट के नंबर भी ज्यादा हैं, हम उसकी बात भी कर रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट रूल बात कर रहा है, रूल 2 लिमिटेशन लॉ की बात कर रहा है। हमें क्या पता है, देखो कि लिमिटेशन एक्ट जो हमारा है वो बात यहाँ पे हर एप्लीकेशन, सूट, अपील, कोई भी चीज फाइल होती है कोर्ट में, हर चीज के लिए वी हैव अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिटेशन व्हिच हैज बीन गिवन इन इंडियन लिमिटेशन एक्ट। तो उसके लिए हमें मान लीजिए सूट के लिए फॉर एग्जांपल 3 इयर्स का टाइम पीरियड था, आपने सूट फाइल किया, 3 साल से पहले कर लिया था आपने सूट फाइल, और उसके बाद यू डिड विथड्रॉ द सूट विद परमिशन ऑफ द कोर्ट और विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, इट डजंट मैटर, कि आपने विथड्रॉ कर लिया और उसके बाद आपने बहुत सालों तक सूट फाइल नहीं किया। तो ये चीज यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जो लिमिटेशन पीरियड है वो उतना ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई कॉज ऑफ एक्शन को फाइल करने का सूट के लिए टाइम पीरियड जो था प्रिस्क्राइब, दैट वाज जनवरी 2021 एंड यू फाइल्ड अ सूट इन दिसंबर 2020 और आपने दिसंबर में विड्रॉ कर लिया। उस केस में आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो बढ़ के दिसंबर के बाद 3 साल नहीं होगा, लिमिटेशन पीरियड अभी भी जनवरी 2021 ही है। तो आपको 3 साल के अंदर अंदर ही सूट फाइल करना है जिस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने बीच में एक सूट फाइल करके उसको विड्रॉ कर लिया था, आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड नहीं होगा। यहाँ पे ये बात कर रहा है ये रूल 2 में। इज इट ओके? मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन? लिमिटेशन लॉ आपको पता है क्या होता है? लिमिटेशन लॉ यस मैम। क्या होता है लिमिटेशन? Ma'am, that there's like a certain period within which you can carry out certain like things. You have to file, not carry out, beta. You have to file the suit before the period expires, right? तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर सूट फाइल करने के लिए यू हैड 3 years का टाइम पीरियड एंड यू फाइल्ड अ सूट बिफोर दोस 3 years, लेकिन आपने वो सूट फाइल करके विड्रॉ कर ली।
तो जिस दिन से आपने विड्रॉ कर लिए, मान लो आपको नई फ्रेश सूट फाइल करने के लिए कोर्ट गेव यू प्रिविलेज टू फाइल अ फ्रेश सूट, उस केस में आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो विड्रॉ करने की डेट से वापस शुरू नहीं होता। वो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन अराइज हुआ था उस दिन से 3 साल का ही है। तो आपने विड्रॉ किया है सूट, आपने कंटेस्ट किया, आपको जो भी करना है आपको विद इन लिमिटेशन पीरियड ही करना है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सूट फाइल किया था, तुमने, मैंने और गायत्री ने, हम 3 लोग पार्टी थे यहाँ पे, हम तीनों ने सूट विड्रॉ कर लिया और उसके बाद हम लोग फ्रेश सूट फाइल करना चाह रहे हैं। तो अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमारा जनवरी 2021 से खत्म हो जाने वाला था उस दिन, आज भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन जनवरी 2021 का ही है, वो चेंज होके 2023 पे नहीं जाएगा, 3 साल बाद पे नहीं जाएगा, वो आज भी 2021 में खत्म हो जाएगा। All right, ma'am. इज इट ओके? किसी और को डाउट है इस बारे में? कोई और एग्जांपल देके समझाऊं मैं, और इज इट क्लियर? फाइन। यस गायत्री? Nothing, ma'am, nothing. ओके यहाँ पे मैंने ये जो अपना एक सेक्शन है, सेक्शन 14 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट, जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पे विड्रॉल और सूट्स के बारे में बात कर रहा है। आई हैव इंक्लूडेड दैट सेक्शन हियर ओनली, which talks about the exclusion of time in instituting the suit in case the plaintiff was contesting other civil proceeding in good faith. If you were contesting some other civil proceeding in good faith, so then you are excluded with a certain time period. वो जब हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इस चीज को पढ़ लेंगे। अभी आप बस ये याद रखिएगा कि विड्रॉल के साथ सेक्शन 14 का सबसेक्शन 3 पढ़ा जाता है। यहाँ पे ये चीज मैंने लिख दी है, लेकिन जब हम लिमिटेशन पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। इज इट ओके? शैल वी मूव अहेड? फाइन, Yes, ma'am. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट। विड्रॉल खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट होता है कि यू आर नॉट विड्रॉइंग एनी एक्शन, you are just entering into an agreement and you are informing the court that we have, as a plaintiff and defendant, we have entered into an agreement and we are going to settle this claim within ourselves. You just have to pass a decree here that this particular claim is settled. कॉम्प्रोमाइज के केस में क्या होता है कि अगर आप ये प्रूव कर दो कोर्ट को कि हम लोगों ने सेटलमेंट कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे लागवी वर्सेस गायत्री एक केस था और लागवी को एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था जो कि इट वाज वर्थ 10 crore rupees, and in that case Lagvi, that Gayatri did not perform that particular contract, did not supply the goods which were planned to be supplied under that contract, and now Lagvi is contesting the suit and Lagvi is suing Gayatri for that particular thing which was planned to be supplied in the contract. और अब यहाँ पे सूट फाइल कर दिया उन्होंने, पर वो विड्रॉ नहीं करना चाहते उस सूट को, वो लोग कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। तो उस केस में अगर गायत्री और लागवी आपस में किसी कॉन्ट्रैक्ट में, दे हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सैटिस्फाई देयर पर्टिकुलर क्लेम, in that case they may enter into a contract and after that they have to inform the court that we have entered into a contract और आप इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारी कॉम्प्रोमाइज डिक्री जो है वो पास कर दीजिए। तो कोर्ट ये भी कर सकता है। तो एक बार इसका लैंग्वेज देख लीजिए रूल 3 का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे। ये बात कर रहे हैं where it is proved to the satisfaction of the court that a suit has been adjusted wholly or in part, कि कोई भी सूट जो है उसके अंदर जो भी क्लेम था वो एडजस्ट कर लिया है दोनों पार्टीज ने आपस में, by any lawful agreement or compromise in writing and signed by the parties। ये कंपल्सरी है यहाँ पे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन राइटिंग होना चाहिए और साइन बाय द पार्टीज होना चाहिए। और where the defendant satisfies the court, the plaintiff, in respect of whole or any part of the subject matter, the court shall order such agreement and satisfaction to be recorded and shall pass a decree in accordance therewith. So far as it relates to the parties to the suit, whether or not the subject matter of the agreement, compromise or satisfaction as the subject matter of the suit. आपको यहाँ तक समझ में आ गया ये वाला पॉइंट तक?
ये जितना मैंने अभी हाईलाइट किया इतना समझ में आ गया आप लोगों को क्या बात कर रहा है ये? और shall I explain again? Ma'am, can you explain again? But please. Yes. यहाँ पे हम विड्रॉल खत्म कर चुके हैं, यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं। अब जब हम कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं दोनों पार्टीज प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दे आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटरिंग इनटू अ कॉम्प्रोमाइज regarding that particular claim which has been arised in the suit by the plaintiff. For example, मान लीजिए अलीशा वर्सेस संजना एक केस था। अलीशा और संजना ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था पहले और उसके ब्रीच के लिए अलीशा इज नाउ suing संजना for the breach of the contract. अब वहां पे सूट तो फाइल कर दिया अलीशा ने, लेकिन अब अलीशा और संजना को लगता है they want to enter into a compromise, enter into a settlement. In that case, me and Sanjana we can enter into a contract regarding that particular claim, जो भी claim फाइल हुआ है कि 10 करोड़ का क्लेम था मेरा, संजना ने वहां पे मुझे 9 पॉइंट सम करोड़ पे कर दिया और कुछ मुझे और कुछ पे कर दिया वहां पे। और अगर संजना इस चीज को लेके सेटिस्फाई कर देती है कोर्ट को कि मैंने अलीशा का जो क्लेम था वो सेटिस्फाई कर दिया है यहाँ पे, तो कोर्ट उस क्लेम को एग्जामिन करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को एग्जामिन करेगा और उसके बाद कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली डिक्री पास कर देगा, जो भी आपने कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट जो भी आपस में किया होगा उसके अकॉर्डिंग। इज इट ओके नाउ? Yes, ma'am. तो यहाँ पे हम केवल पार्टीज के आपस के कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं कि व्हेन पार्टीज आर एंटरिंग इनटू अ कॉम्प्रोमाइज, एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, इन दैट केस कोर्ट विल पास द डिक्री अकॉर्डिंगली। बस ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट आपने किया है ये राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाय द पार्टीज। अब एक चीज देखिए, बस यहाँ पे ये जो लास्ट पॉइंट है इसको थोड़ा सा समझने वाला है। इस पॉइंट में जो बात की जा रही है, पहले मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसकी लैंग्वेज पे वापस आ जाएंगे। दिस पॉइंट इज स्पीकिंग अबाउट दैट द कॉम्प्रोमाइज मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो अलीशा और संजना का आपस का एग्रीमेंट है जिसमें मैंने 10 करोड़ रुपीज, आई क्लेम 10 करोड़ रुपीज फ्रॉम संजना इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। In that case, if me and Sanjana, we are entering into a compromise, we are entering into a contract that Sanjana is giving me his bungalow, which is worth rupees 8 crore rupees right now, then in that case, if I am satisfied with that particular agreement, with that particular compromise, in that case also court will record the decree and pass that accordingly. मतलब ये यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए यू फाइल्ड द सूट आपका अग्रीमेंट भी उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए। ये दिस इज नॉट कंपल्सरी। You may enter into an agreement regarding some other thing, but the party must feel satisfied from that agreement, that compromise. That is the only condition which is required to be fulfilled here. Is it okay? Last line का मैंने आपको example दिया है, आपको समझ में आ गया? और shall I explain again? Again, 1 minute, one more, please. क्या समझ नहीं आ रही मुझे बताओ थोड़ा, मैं उसी पॉइंट पे एम्फसाइज करूंगी। मैम एक्चुअली नेट प्रॉब्लम हो गया था तो आपकी आवाज नहीं आई प्रॉपर्ली। ओके, किसी और को कोई डाउट है इसमें? लास्ट पॉइंट जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, ये पॉइंट थोड़ा सा समझने का है आपके लिए कि अगर आपका क्लाइंट है कोई, ही वांट्स टू एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज, तो जरूरी नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आपको सूट के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ही कॉम्प्रोमाइज चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यू फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट समवन रिगार्डिंग अ प्रॉपर्टी एंड इफ यू गाइस वांट टू एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज, तो जरूरी नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज करें। यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यू आर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, और वो कॉम्प्रोमाइज, वो एग्रीमेंट जो है वो उसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी के बजाय उसे पैसे देकर कॉम्प्रोमाइज करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। सिर्फ पार्टी को सेटिस्फाई करना जरूरी है। सब्जेक्ट मैटर सेम होना इज नॉट द कंपल्सरी कंडीशन हियर। इज इट ओके नाउ दीक्षा? यस मैम, यस मैम, ठीक है,
जो सब्जेक्ट मैटर Yes, है ma'am. एग्रीमेंट का, यू आर फ्री टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग एनीथिंग, बस पार्टी को दैट इज द ओनली कंडीशन. दैट एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल एंड दैट पार्टी मस्ट फील सेटिस्फाइड. और कोर्ट में आपको रिटन और साइन कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां पे वो दिखाना है अपना. पार्टी जो है वो आपस में सेटिस्फाइड है, कोर्ट से सेटिस्फाई होकर डिक्री पास कर देगा अकॉर्डिंगली. ठीक है. Writing and signed by the parties are the most essential element of this, na compromise of suit. Yes. और द प्लेंटिफ, यहाँ पे देखो एक चीज ये है, यहाँ पे अगर डिफेंडेंट सेटिस्फाई भी कर देता है कोर्ट को, तो कोर्ट उस ऑर्डर को, उस एग्रीमेंट को यहाँ पे सेटिस्फाई, जो हुआ आपने सेटिस्फेक्शन, जो यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉम्प्रोमाइज, उसको रिकॉर्ड कर लेगा और डिक्री अकॉर्डिंगली पास कर देगा. ये ओके मैम. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए. नेक्स्ट पॉइंट क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे वी हैव सर्टेन provisos to this rule 3. provisos are talking about कि अगर एक पार्टी कह रही है कि अग्रीमेंट हुआ है और दूसरी पार्टी कह रही है कि कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, तो कोर्ट शैल डिसाइड द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. ठीक है. पहला प्रोवाइजो तो ये बात कर रहा है यहाँ पे, जो हमारा प्रोवाइजो है यहाँ रूल 3 का, that if there is a dispute between the parties, that whether a compromise, whether an agreement has been entered into by those parties or not, then court is the one who shall decide the question, and unless and until court decides that question, no adjournment shall be granted for the purpose of deciding that particular question, unless the court, for the reasons recording, thinks to grant an adjournment. यहाँ पे बात ये है, मतलब कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अलीशा और संजना जो है यहाँ पे, दे हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. नाउ वी आर क्लेमिंग देयर, अलीशा इज क्लेमिंग कि कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, and Sanjana is saying that she has already entered into an agreement. यहाँ पे हम दोनों के बीच में agreement को लेके यहाँ पे dispute है. उस केस में court is the party who is going to decide which agreement and what kind of satisfaction they have entered into. Otherwise, those people cannot enter into this particular thing, satisfaction. और कोर्ट उसके रिगार्डिंग डिक्री भी ऑर्डर नहीं करेगा जब तक कोर्ट उस क्वेश्चन को डिसाइड नहीं कर लेगा जो दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है. Is it okay? Is it this proviso clear? Shall we move on to the next slide? ये explanation जो यहाँ पे नीचे, ये एक छोटा सा explanation दिया हुआ है इन्होंने कि जो आप compromise कर रहे हैं, agreement कर रहे हैं, if they are void or voidable, तो वो यहाँ पे lawful के मतलब में नहीं आते हैं. हमने यहाँ पे सबसे ऊपर देखा था, देखिए यहाँ पे इन द फर्स्ट स्लाइड, एनी लॉफुल अग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज. तो यहाँ पे जो लॉफुल अग्रीमेंट है उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि अगर कोई अग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज विच इज वॉइड और वॉइडेबल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, in that case that particular compromise or agreement is not valid under this rule, and court will not allow the parties to enter into that compromise, and court will not pass a decree accordingly. So is it okay? Shall we move on to the next slide? Any questions till Yes, now? ma'am. Okay. Let's move on to the next slide. Next slide says that there is a bar to the suit. Rule 3 capital A, which talks about that no suit shall lie to set aside a decree on the ground that the compromise on which the decree is based was not lawful. If the court has examined all the ingredients of lawful agreement and the court has passed a decree accordingly under Rule 3, in that case, a person cannot file another suit to set aside that decree on the ground that compromise on which the decree is based was not lawful. If you want to question that compromise, you must do it right there. Here I've included some incidents of the consent decree. What happens कि अगर आप suit file नहीं कर सकते, in that case क्या होगा? In that case, in a consent decree, it cannot be said that a suit is heard and finally decided by the court on merits, so it would not amount to res judicata. We know what res judicata is. If a certain point, if a certain issue has already been decided by the court between the parties, then that particular party cannot file another suit regarding the same subject matter. And that works as res judicata. But in this case, as the court has not examined the merits of the case, res judicata is not applicable.
रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं है, बट वी हैव एन एक्सप्रेस बार टू अ फ्रेश सूट हियर. No suit shall lie to set aside the decree on the ground that the compromise on which the decree is based was not lawful. तो आप उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए सूट फाइल नहीं करेंगे. प्लस रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता नए सूट के लिए, कि अगर आप सेम सब्जेक्ट मैटर पे नया सूट फाइल करना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपके पास कोई बार नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रेस जुडिकेटा नहीं है. Such a decree, however, may create an estoppel between the parties. Estoppel के बारे में आइडिया किसी को क्या होता है? estoppel What is estoppel? Ma'am, what you have said once, you cannot deny from it later on. Okay. And where do we find this estoppel के बारे में provisions? Evidence Act में भी मिलता है मैम. Evidence Act में मिलता है हमें provision इसके regarding. Correct. तो यहाँ पे देखिए एक चीज कि पहली बात तो ये हो गया यहाँ पे कि कॉम्प्रोमाइज का कंसीक्वेंस क्या होगा. अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया एक बार, कॉम्प्रोमाइज के बाद आप कॉम्प्रोमाइज को सेट असाइड करवाने के लिए वहां पे सूट फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि रूल 3 कैपिटल ए क्लियरली ये चीज कह देता है यहीं के. लेकिन अब हम बात ये कर रहे हैं कि क्या सेम सब्जेक्ट मैटर पे आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं क्या? अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो क्या आप उसके लिए आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो फ्रेश सूट को बार करने के लिए रेस जुडिकेटा ऑपरेशन में आता था, लेकिन यहाँ पे रेस जुडिकेटा ऑपरेशन में नहीं है, क्योंकि सूट हैज नॉट बीन सेट टू डिसाइड ऑन मेरिट्स, इसलिए रेस जुडिकेटा इज नॉट इन ऑपरेशन. तो रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता, लेकिन दैट क्रिएट्स एन एस्टॉपल बिटवीन द पार्टीज, कि उन दोनों ने कोई एक ऐसा अग्रीमेंट दे हैव एंटर्ड इनटू, एंड आफ्टर दैट द अदर पार्टी हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन relying on that particular representation, relying on that particular agreement. In that case, he cannot file another suit on that. But what if the compromise was entered into with undue influence, coercion? In that case, what happens? मान लीजिए कि कॉम्प्रोमाइज आपने जो किया था वो लॉफुल था अग्रीमेंट, लेकिन वो लॉफुल अग्रीमेंट जो है उसको किया गया था किसी, आपको फ्रॉड प्रूव करना है, यू वांट टू प्रूव मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, व्हाट हैपेंस इन दैट केस? एनीवन? Ma'am, repeat the question, please. आई एम आस्किंग कि अगर कॉम्प्रोमाइज जो यू एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द पार्टी, और अब आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो आपका अग्रीमेंट हुआ था वहां पे वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ था, या फिर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि फ्रॉड था उसमें, या कोई भी ऐसी चीज थी, आप ये प्रूव करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? मैम, नया सूट कर दो इस सब्जेक्ट मैटर पे कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस पे हुआ था. ओके. एनीथिंग एल्स? एनीवन एल्स? क्या आप अपील फाइल कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज की डिक्री से? किसी ने इस कंसेप्ट को देखा हुआ है? कॉम्प्रोमाइज की डिक्री से अपील फाइल होती है या नहीं होती है? नहीं होती मैम इसकी अपील. ओके. कहाँ पे है इसका प्रोहिबिशन अपील का? 96 में दे रखा है मैम. मैम इसका रिवीजन फाइल कर सकते हैं. रिवीजन फाइल करने की जरूरत नहीं. इसकी पता है क्या होगा सौरभ, यहाँ पे दो चीजें हैं. जो अपना ऑर्डर है ना, दिस ऑर्डर जो मैंने यहाँ पे लिखा है 43, इसमें जो रूल 1A का सब रूल 2 है, ये बात करता है कि एन अपील अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड आफ्टर रिकॉर्डिंग अ कॉम्प्रोमाइज कैन बी फाइल्ड. मतलब कि यहाँ पे ये है कि 96 का जो थर्ड पॉइंट है वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री पे अपील फाइल करने के लिए मना कर रहा है, लेकिन 43 का जो यहाँ पे रूल 1 कैपिटल ए का सब रूल 2 है
वो ये बात कर रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको उससे अपील फाइल करनी है, एंड इफ यू वांट टू file a suit file an appeal against that particular compromise decree on the point कि वो compromise decree fraud पे थी या कोई भी ऐसी चीज थी जो आपके agreement को affect कर रही थी, तो you will be allowed to file an appeal accordingly. इसका जो डिटेल वर्जन है compromise decree की अपील का, ये हम तब डिस्कस करेंगे जिस टाइम पे हम लोग अपील पढ़ रहे होंगे. अभी आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम कॉम्प्रोमाइज डिक्री की बात कर रहे हैं, हमें 96 का 3 पॉइंट अंडर सेक्शन 96(3) ये पढ़ना है साथ में, प्लस ऑर्डर 43 का रूल 1A का सब रूल 2 साथ में पढ़ना है इसके. ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा. जब हम अपील की बात करेंगे यहाँ पे, तो उसके रीजंस और उसके ग्राउंड्स की बात करेंगे डिटेल में. Let's move on to next sub rule here. Rule 3 कैपिटल B, जो यहाँ पे बात कर रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में बिना कोर्ट की लीव के यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉम्प्रोमाइज. तो यहाँ पे वैसी ही बात है जैसे हम विड्रॉल के बारे में बात कर रहे थे कि अगर क्लास एक्शन है कोई, तो उस केस में आप विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आपको कोर्ट की परमिशन ना हो. सेम केस is here that you cannot enter into a compromise, enter into an agreement. If it is a class action, you cannot enter into an agreement without the leave of court. So it says no agreement or compromise in a representative suit shall be entered into without leave of the court, expressly recording the proceeding. Any such agreement recorded so be void. कि अगर उसके बिना होता है, परमिशन के बिना होता है कोर्ट की, तो वो void होगा, वो अलाउड नहीं होगा वहां पे. प्लस कोर्ट की यहाँ पे ड्यूटी क्या बनती है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव सूट में कोर्ट के पास ऐसी एप्लीकेशन आती है दैट they have entered into a compromise or they have entered into an agreement, court is bound to issue the notice to all such persons जिनका भी इंटरेस्ट उस सूट में अफेक्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल there were 3 people, और उसमें से मान लीजिए कि कोई जो पार्टीज हैं उनमें से किसी एक ने अप्लाई किया है वहां पे कि हम सेटलमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और we have entered into an agreement. कोर्ट उस केस में सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं जिनके इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं, प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों साइड से, उनको वहां पे नोटिस इशू करेगा. सारे लोग जाके कोर्ट में अपीयर होंगे, कोर्ट उनसे जो भी क्वेश्चनिंग करनी है वो करेगा, और उसके बाद ही कोर्ट विल अलाउ इन दैट पर्टिकुलर सूट टू एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज और अग्रीमेंट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर क्लेम. इज इट क्लियर? रूल 3B. रिप्रेजेंटेटिव सूट का ये एक्सप्लेनेशन में इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से तरीके की सूट जो है यहाँ पे उनको हम रिप्रेजेंटेटिव सूट मान रहे हैं. And in the last rule 4, they are saying that these particular order, these particular rules is not applicable in case of execution of decree. इसका मतलब ये है कि हम proceedings पे apply तो कर रहे हैं इसको. Withdrawal of suit है तो withdrawal of appeal भी included है. Compromise in a suit है तो compromise in an appeal भी included है. लेकिन compromise और withdrawal in case of execution of decree जो है ये included नहीं है. तो ये जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं, इन पे ये रूल जो हैं, ये ऑर्डर जो हमने अभी पढ़ा है, इसका कोई भी प्रोविजन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर पे अप्लाई नहीं होता. तो दिस वाज द होल एंड सोल ऑफ विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स. अभी तक में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अभी बोलिए. Ma'am, the last point. Rule 4. Yes, ma'am. Rule 4 says कि इस ऑर्डर में लिखे हुए जितने भी रूल्स हैं, जो भी प्रोविजंस हमने अभी पढ़े हैं, वो सारे प्रोविजंस, वो प्रोसीडिंग सारी एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री पे अप्लाई नहीं होती. मतलब यहाँ पे ये है कि आप एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन डाल के, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में जितनी भी चीजें होती हैं, कोई एप्लीकेशन फाइल हो रही है, कोई आपने वहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन डाली है, स्टे के लिए एप्लीकेशन डाली है, इन सारी चीजों का जो भी प्रोसीजर होगा वो सारा का सारा 21 के हिसाब से होगा. यहाँ पे जो विड्रॉल कॉम्प्रोमाइज है उसका कोई भी प्रोविजन एग्जीक्यूशन पे अप्लाई नहीं होगा. ओके. क्योंकि ये जो विड्रॉल और कॉम्प्रोमाइज है ये अपील पे भी अप्लाई होता है.
वी हैव अ प्रोविजन इन अपील्स आल्सो जिसमें ये लिखा हुआ है कि सूट पे जितने भी प्रोविजंस लगते हैं वो सारे के सारे विद नेसेसरी चेंजेस विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अपील आल्सो। तो यहाँ पे अपील पे भी विड्रॉल और एडजस्टमेंट लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन पे विड्रॉल एडजस्टमेंट नहीं लगेगा। बस ये यही कहना चाह रहे हैं। इज इट ओके? किसी को कोई डाउट है Yes, आज ma'am. वाले टॉपिक में? कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए प्लीज। और कल के क्विज जो हम लोगों ने किया था कल, उसके रिगार्डिंग जिसको जो भी डाउट हो, यू गाइस कैन टेक्स्ट मी और कॉल मी एनी टाइम, ओके?